Hello students, how are you? Fine? So I'm again back with the new lesson, that is conjunction. So within 2 minutes we revise the recent one, what we did. Clear? So from the parts of speech, what we did? Tell me. Now you tell me what we did from the parts of speech. How many speeches we did? We did first one, noun. Good. Second one, pronoun. Very good. Third, adjective. Fourth, verb. Fifth, adverb. Sixth number, what comes? That is your conjunction. Clear? So now, today we are going to do the conjunctions. Clear? So tell me that, is it that lecture clear to you regarding the adverb? What we did in adverb, is it clear to you? In that we did lots of speaking session as well. Clear? Means how to ask questions and all. We also did that thing ना कि हम questions कैसे पूछते हैं, क्या करते हैं. तो हमने ये चीज की. Clear? अब आप लोग मुझे बताइए कि हम जो ग्रामर का पोर्शन कवर अप कर रहे हैं, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या आपको क्लियर हो रहा है साथ साथ में? With your writing portion as well, I told you earlier regarding that one that you have to speak this thing as well. Clear? Try to use these all things in your speaking. When you are speaking now in Hindi as well, Hindi भी बोलते हैं ना, उसमें भी try to use some English words in that. For example, मैंने बोला कि मैं मार्केट जा रही हूं, तो मार्केट क्या, मैंने बाजार की जगह यूज किया वर्ड मार्केट. तो इसी तरह अगर आप हिंदी में ही इंग्लिश यूज करेंगे और धीरे धीरे एक सेंटेंस में एक वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश का, फिर एक सेंटेंस में काफी दिनों बाद 2-3 वर्ड यूज करेंगे, फिर नेक्स्ट 5 दिन बाद आप लोग 4-5 वर्ड यूज करेंगे सेंटेंसेस में. क्लियर? बट एक 6 डे ऐसा आएगा जब आप पूरा का पूरा सेंटेंस किस में बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे. राइट? सो आवर कम्युनिकेशन स्किल्स आर मस्ट. If you want to be survive in today's world, your communication skills should be there with you. Clear? Your mind should also be there. For example, some want to become the businessman, some want to become the serviceman, isn't it? तो कई businessman बनना चाहते हैं, कई serviceman बनना चाहते हैं. For that, they also need that communication skill because they want to be meet every day with the different clients in their offices as well. If you are a serviceman, if you are doing any job for any company, any multinational company, at that time what do people want? People want that you should be having a very good communication skills. Their employees should have a very good communication skills because the multinational company means they are the international companies. Clear? So these companies are running in different nationalities. Clear? So to communicate with the people from that area, from that nationality, at that time your English is must, your communication is must, isn't it? So you should speak in English as well. So जब मैंने आपको करवाया था एक लेसन, अगर आपको याद होगा, प्रॉपर नाउन में उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर एडजेक्टिव करवाया था. Clear? In proper adjective, what comes? That the nationality of different countries comes in that. For example, for the India, what we are saying to the people of India, we are saying to people of India what? Indian. Clear? What we are going to say to the people of England, we are going to say the people of England, British people, or we are going to be say English people to them. Clear? And what we are going to be say to the Spain people, Spanish. Clear? What we are saying to the Russia, those who are living in Russia, what you are going to be say to them? Tell me, hurry up. Speak louder so that I can listen you. It will build a confidence in yourself when you speak louder. I'm always saying to you, please speak loud. Clear? It will remove your hesitation from inside and it will give you lots of confidence that how to speak English. Clear? So, the people of Russia, that is Russian people. Good. And the people of Holland is also a very nice country. So, what we are going to be say to the people of Holland? We are going to be say the people of Holland, the Dutch people. Clear?
So nowadays in India, lots of foreign tourists are coming to the India to visit to the Taj Mahal and different monuments in Delhi as well. Clear? So जब वो different जगह से आते हैं, foreigners आ रहे हैं, their languages, their nationalities are different, and their languages of that country is also different. For example, let's take example of your country as well. अपनी country की ही हम example लेते हैं. India is our country. Clear? India is full of customs and tradition, rich in culture. हमारी country rich है culture में. Clear? In our nation, in our native country, lots of languages have been spoken by the people. Clear? यहाँ पे speak by the people different languages. For example, in the Punjab the people speak Punjabi. In the Bihar the people speak Bihari. In the Maharashtra the people speak different Marathi language and all. So in India we are having a lots of languages with ourselves. But to communicate with the other state people, one is the common language is that is your Hindi. Hindi is what? Hindi is your national language. That is why we are speaking over there in different states, so that people can understand very easily. Because at that time if you want to go to the other state, for example you belong to North India and you want to go to the South India, ठीक है? North India से belong करते हो आप लोग and you want to go to the South India, और आप लोग South India में जाना चाहते हैं. Clear? At that time their languages are different, isn't it? So Hindi is what? Hindi is your national language, isn't it? So Hindi तो उन्हें आती होगी, that is why we can communicate very easily with them in Hindi. But your second language is your English. Because if you want to go in some other country, now take it out the example of some other country. ठीक है? अगर हमें किसी other country में जाना है, उस country में जाके the people are speaking language of their country. Clear? For example, in the France, the French people are there. They are using which language? They are using the French language. In Germany, the people are using the German language. Clear? So it's quite difficult for our people that we can learn that sort of languages. Clear? So at that time, if you want to communicate with that people, which language is the medium for you? That is the English. Clear? So now, it's okay with you that how English is important for you. English कैसे important है and how much और कितनी important है. Clear? Without English, you can't go to any multinational company for an interview. Without English, you can't communicate with your clients as well in the business, because your clients are also belong to very good families and very good businesses. Clear? At that time, their employees are also postgraduates and all. Their communication skill are also very good. So that is why they people are coming to your companies and to your offices to talk with you, to give you the proposal, different marketing proposal to you people. Clear? So at that time, what language they are using? They are using the English language, because they are having a multinational companies. Clear? They want to talk to other country people as well. So at that time, the medium language they are using out, that is the medium of language they are using over there to speak with them, that is the English one. Isn't it or not? Tell me. इंग्लिश में ही बात करेंगे या किसी और लैंग्वेज में हम बात करेंगे उनके साथ? We want to talk with them in English. Clear? So, speak in English. In my class, at least, speak in English. Clear? Whatever you want to ask from me, say, excuse me ma'am, I have one question. मेरे पास एक क्वेश्चन है, या I want to put one question. मैं एक क्वेश्चन पुट करना चाहता हूं. Clear? So आप लोग ऐसे पूछेंगे आपसे. कैसे पूछेंगे? Excuse me ma'am, I have one question. Excuse me ma'am, please you tell me the answer of this question. So different तरीके होते हैं हमारे पास, कैसे हमें इंग्लिश में टीचर से बात करनी है, फॉर्मल वे में कैसे बात करनी है, इनफॉर्मल वे में कैसे बात करनी है. Clear? So at that time, from today's onward, you all are going to speak in English. अगर आपको अपने फ्रेंड से एक पेन भी लेना है ना, तो यू शुड ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश एट दैट टाइम. कैसे? बताया था मैंने. इफ यू रिमेंबर दैट, आई टोल्ड यू अर्लियर. क्या उधार लेना है ना, ले तो नहीं लेना, गिफ्ट तो नहीं कर देगा वो तुम्हें पेन, उधार ही लोगे ना तुम मुझसे.
सो उधार लेते हुए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? यू आर यूजिंग द वर्ड बोरो, है ना? सो आज से आप लोग ऐसे अपने फ्रेंड से अगर पेन भी लेना है तो आप बोलोगे प्लीज कैन आई बोरो, कुड आई बोरो योर पेन? क्लियर? सो आपकी फ्रेंड ने अगर आपको पेन देना है उस टाइम पे आप बोलोगे, उस टाइम पे आपका फ्रेंड आपको बोलेगा ओके टेक दिस। क्या बोलोगे? टेक दिस, मतलब ये लीजिए। क्लियर? सो हमने आज एक क्वेश्चन सीखा है, कुड आई बोरो योर पेन? क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूं? तो इसका आंसर कैसे देंगे आप? ओके टेक दिस, अच्छा है ये लीजिए। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? ये नोट कर लीजिए और आपने ऐसे ही पूछना है आज के बाद क्लास में। अगर किसी को किस बुक लेनी है किसी से तो आप ऐसे बोलोगे कुड आई बोरो योर बुक? क्लियर? तो आप लोग आंसर दोगे ओके टेक इट या टेक दिस। ठीक है? ये लीजिए, टेक दिस भी बोल सकते हैं आप, टेक इट भी बोल सकते हैं आप। बोथ आर करेक्ट इन स्पीकिंग। ओके, दोनों करेक्ट है हमारी स्पीकिंग में। क्लियर हुआ? और आप लोग क्या बोलते हैं? अगर आपका फोन बच गया क्लास में, ठीक है, आपको फोन सुनने जाना है बाहर, तो आप टीचर से परमिशन लेके ही जाओगे ना बाहर। तो कैसे परमिशन लेंगे हम टीचर से? अभी हम थोड़ा सा स्पीकिंग पोर्शन करते हैं, बाद में हम आएंगे अपने कंजंक्शन पोर्शन पे, ग्रामर में। क्लियर? अब आप लोग मुझे बताइए, नाउ यू टेल मी, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना। अगर क्लास में बैठे बैठे आपका फोन रिंग हो रहा है, रिंग अप हो रहा है, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आई हुई है आपको या आ रही है, तो आपको फोन सुनना है, तो आप अपने टीचर से परमिशन लेंगे बाहर जाने की क्लास से, है ना? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि क्लास में बैठ के टीचर तो आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप फोन पे बात कर लीजिए, बिकॉज यू आर स्पॉइलिंग द डेकोरम ऑफ द क्लास एंड डिसिप्लिन ऑफ द क्लास एज वेल। क्लियर? बिकॉज डिसिप्लिन इज ऑल्सो शुड बी देयर इन द क्लास। Without the discipline, you can't listen to teacher carefully. And you can't write it down anything because your mind is not into the words of the teacher. Your mind is somewhere else while talking to other people. Means what the people are talking, to stop them, your mind is diverting over that. Not your mind is putting out over there what the teacher is speaking. है ना? टीचर क्या बोल रही है, आपका माइंड वहां नहीं होगा, आपका माइंड वहां होगा कि हाँ वो लोग क्या बोल रहे हैं, मैं उन्हें कैसे चुप करवाऊं। So discipline is also should be there in the class. डिसिप्लिन भी क्लास में होना बहुत जरूरी है। और क्लास का एक डेकोरम होता है। डेकोरम मीन्स जिस लहजे से तरीके से क्लास में बैठते हैं हम लोग, कुछ तरीका होता है क्लास में भी। ये नहीं है कि वी आर स्कैटरिंग आउट द चेयर्स, हम चेयर्स को फैला रहे हैं, एक वहां बैठ रहा है, एक यहां बैठ रहा है, एक यहां बैठ रहा है, तो दैट इज नॉट द डेकोरम, दैट इज ऑल्सो कम्स इन डिसिप्लिन एज वेल। क्लियर? सो देखिए, अगर आपको कॉल आ रही है, आपको क्लास के बाहर जाना है, आप लोग मेरे से कैसे पूछेंगे? कैन आई गो आउटसाइड? कैन आई गो आउटसाइड? क्या मैं बाहर जा सकता हूं? तो उसका आंसर क्या होगा? यस यू कैन। जी हां, आप जा सकते हैं। क्लियर? सो ये दो क्वेश्चंस हैं जो हम बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपनी स्पीकिंग में यूज करते हैं। क्लियर? इन्हें आप नोट डाउन कीजिए और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना ग्रामर सेशन, दैट इज योर कंजंक्शन। राइट इट डाउन स्टूडेंट्स।
Now come to the grammar portion, that is the conjunction one. Your next topic of your parts of, from your parts of speech, that is conjunction. That is the sixth topic now we are going to do. Clear? Now tell me, what is conjunction? Hurry up students, tell me what is conjunction. I told you earlier what is junction. Junction क्या होता है? Junction is that जंक्शन वो होता है कि जहां पे काफी सारी चीजें आके मिलती हैं, दैट इज द जंक्शन. फॉर एग्जाम्पल रोड्स पे भी जंक्शन होते हैं जहां पे काफी सारी सड़कें आके मिलके डिफरेंट जगह पे और निकलती हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन. बेस्ट एग्जाम्पल इज दैट यू आर गोइंग इफ यू वांट टू बी गो फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट थ्रू द रेलवे, ठीक है, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू द जंक्शन, यू आर गोइंग टू द रेलवे जंक्शन देयर. मीन्स फॉर एग्जाम्पल बिहार जंक्शन इज दैर, दिल्ली जंक्शन इज दैर, and Punjab junction, Jalandhar junction, Amritsar junction. So yeah, there are different junction which are joining the tracks of the railways. Clear? जो join करते हैं आपस में मिला के फिर वो दूसरी जगह में डाइवर्ट कर दिए जाते हैं. So that is called junction. So हमारी ग्रामर में कंजंक्शन क्या होती है? कंजंक्शन I told you, remember? बताइए मुझे. Tell me, hurry up. If you remember that. On the spot, give me the answer. Don't open your copy. Don't dare to open your copy now. ऐसे मुझे बताइए कंजंक्शन क्या होते हैं. अभी इतना बड़ा लेक्चर दिया मैंने आपको व्हाट इज जंक्शन, तो वैसी ही कंजंक्शन होती है. ये क्या होती है? कंजंक्शन इज दैट विच जॉइंस टू और मोर सेंटेंसेस, क्लॉजेस और फ्रेजेस, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन. और वर्ड्स एज वेल. ठीक है, जो दो सेंटेंसेस मतलब दो वाक्यों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करती हैं, वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करती हैं, दैट इज कॉल्ड योर कंजंक्शन. क्लियर? नाउ राइट इट डाउन इट्स डेफिनेशन. ए कंजंक्शन इज दैट which is used for joining two phrases, sentences or words, that is called conjunction. उसे हम conjunction बोलते हैं. Clear? Write it down it in your copy. Now write it down the kinds of conjunction. We are having two kinds of conjunction. First one is coordinate conjunction. And second one is subordinate conjunction. अब ये देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी कंजंक्शन होती हैं? ये वो वाली कंजंक्शन होती हैं which joins sentences of equal rank. जो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को, एक ही जैसे दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड योर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. और सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी होती है? जिनमें दो सेंटेंस इक्वल रैंक के नहीं होते हैं. क्लियर? उसमें फर्स्ट सेंटेंस क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज, और जो बाकी बच जाता है दैट इज द सुबॉर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, तो दैट इज मीन्स इसकी द मेन थिंग यू कैन बी गेट इन टू योर माइंड दैट इट
not join sentences of equal rank. ये इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन नहीं करता है. क्लियर? मीन्स इसमें अगर कोई भी दो अगर सेंटेंसेस आएंगे, वो पहले वाला जो सेंटेंस होगा प्रिंसिपल क्लॉज उसके ऊपर निर्भर करेंगे. क्लियर? तो इसलिए हम उन्हें करेंगे सुबॉर्डिनेट क्लॉज में, और कोऑर्डिनेट क्लॉज में हम वो वाले सेंटेंसेस करेंगे, वो वाले सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे जो कि इक्वल रैंक के होंगे. क्लियर? जिनका रैंक इक्वल होगा सेंटेंस में. Done, students? Can I also rub this? You wrote in your copies? Okay. Now come to the first one, that is coordinate conjunction. In this, I am going to give you the different examples of the coordinate conjunction. Clear? The example is that मैंने अपनी बुक खोली और पढ़ने लगा. I am again repeating the sentence. मैंने बुक खोली और पढ़ने लगा. बताइए क्या होगा? I opened my book and began to read. क्या है सेंटेंस यूज किया मैंने यहां पे? मैंने अपनी किताब खोली और मैं पढ़ने लगा. I opened my book and began to read. क्लियर? अब देखिए इसमें दो सेंटेंसेस आपस में निर्भर कर आपस में इक्वल रैंक के हैं. दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन. And is a word which joins these two sentences. So and is used as a what? And is used as a conjunction here. Clear? So this is one of the example of your coordinate conjunction. Now come to the second one. मैं बीमार हूं पर मेरी सिस्टर सही है. मतलब ठीक है. मैं बीमार हूं पर मेरी बहन सही है. अब पर के लिए आप बताइए क्या लगाते हैं हम लोग? और के लिए तो हम एंड लगाते हैं. पर के लिए क्या लगाते हैं? टेल मी. यस, बट लगाते हैं हम. क्लियर? मैंने बोला मैं बीमार हूं, आई एम इल, पर बट मेरी बहन ठीक है. बट मेरी बहन
My sister is well. ठीक है. Clear? देखिए, I am ill but my sister is well. Is this clear to all of you or not? Okay. Next one is, next example. अब लोग आप मुझे बताइए कि ना तो आप ना तो मैं वहां गई. ना तो आप ना तो मैं वहां गई. क्या आएगा इसका? नीदर और नॉर होता है ना तो ये ना तो वो. ना तो ये मीन्स नीदर, ना तो वो मीन्स नॉर. तो क्या बनेगा सेंटेंस? नीदर यू नॉर आई वेंट देयर. क्लियर? सेंटेंस इज दैट नीदर यू नॉर आई went there. Is this clear to all of you? Done? चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. या तो ये या तो वो. ठीक है, अभी मैंने करवाया आपको ना तो ये ना तो वो. नाउ वी आर गोइंग टू डू द एग्जाम्पल ना तो या तो ये या तो वो. ठीक है, सेंटेंसेस या तो पढ़ो या चले जाओ. या तो पढ़ो, ईदर रीड और go out. ये क्लियर हुआ वर्ड? या तो पढ़ो या तो चले जाओ. ईदर रीड और गो आउट. ना तो मैं ना तो तुम ना मैं वहां गए. नीदर यू नोर आई वेंट देयर. So in this, neither and nor is conjunction, and either or is conjunction. Here but is conjunction, and here and is conjunction. So these all are called the coordinate conjunctions. Clear? एक एग्जाम्पल देती हूँ वर्ड्स के साथ. हम वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं. देखिए हम किन्हीं टू वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक कहावत सुनी होगी आपने, करो या मरो. वट वी कैन से इन इंग्लिश टू देम. हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं इसे? करो या मरो. हम बोलते हैं डू और डाई. सो हियर अगेन और इज यूज एज अ कंजंक्शन and it join two words. This is the first word and die is the second word. Clear? So do or die means karo ya maro. Is this clear to all of you students? Done? Write it down in your copies, these sentences. Hurry up.
Write it down. Done, students? चलिए अब नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट योर नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट अच्छे परिणाम के लिए कड़ा परिश्रम कीजिए. ठीक है, ये वर्ड नेक्स्ट है. ये लोग ये चीजें हम लोग हमेशा बोलते हैं. हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी से दिस थिंग टू अस. ठीक है, योर एल्डर्स आर ऑलवेज गोइंग टू से दिस थिंग टू यू. हमेशा ही तुम्हें ये चीज कह रहे होते हैं जब भी तुम्हारे एग्जाम्स आते हैं. ठीक है, when your exam come, at that time your elders are always going to say this thing to you. कड़ा परिश्रम कीजिए अच्छे मार्क्स पाने के लिए. क्लियर? या अच्छी सक्सेस पाने के लिए. क्लियर? So what we are going to be say at that time? Work hard for good results. अच्छे परिणाम पाने के लिए. Work hard for good results. Clear? So here again we are using the coordinate conjunction in this. Here work hard and good results are the two sentences and we are joining that sentences with the for. And for is a conjunction. For is used as a conjunction here. Clear, students? Good. नेक्स्ट अब देखिए, रिजल्ट आ गया, आपका फ्रेंड फेल हो गया, तो आप लोग क्या बोलते हैं, उसके माता पिता क्या बोलते हैं? तो दे आर ऑलवेज सेइंग दैट ही डिड नॉट वर्क हार्ड, दैट इज वाई, या देयरफॉर ही फेल्ड इन द एग्जाम. ठीक है, मतलब उन्होंने बोला कि उसने कड़ा परिश्रम नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया एग्जाम में. क्लियर? उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह असफल हो गया. सो ही डिड नॉट वर्क हार्ड. द सेंटेंस इज दैट ही डिड नॉट वर्क हार्ड therefore he failed. ठीक है, उसने कड़ा परिश्रम नहीं किया इसीलिए वह असफल हुआ. So he did not work hard. So he did not work hard is the first sentence and he failed is the second sentence. Clear? So
Therefore is what? Therefore is used as a conjunction here. Clear, students? Write it down, it into your copies. Hurry up. Work hard for good results. He did not work hard, therefore he failed. Done, students? So, the next conjunction we are going to do, that one is subordinate conjunction. That is the second conjunction. Second conjunction is your subordinate conjunction. Subordinate conjunction में मैंने बताया था वो वाली conjunctions होती हैं जो sentences को आपस में join, equal rank के sentences को आपस में join नहीं करती हैं. Clear? जैसे मैंने बोला कि उनके आने मेरे आने से पहले वे आ चुके थे. मेरे जाने से पहले वे आ चुके थे. So the example of this one is they had come before I went out. The sentence is that they had come before I went out. So here before is used as a subordinate conjunction. So here we use before as a subordinate conjunction. Clear, students? Is this clear to all of you? Okay, that's really good. अगर तुम चाहते हो तो तुम जा सकते हो, ये भी हम अपनी स्पीकिंग में बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज करते हैं. जैसे आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, फॉर एग्जांपल टीचर इज डिलीवरिंग द लेक्चर. तो लेक्चर अगर खत्म होने वाला है तो आप लोग पूछते हो ना, मे आई गो मैम? ठीक है, तो मैम आगे से आपको आंसर क्या देगी? इफ यू लाइक यू कैन गो. अगर तुम चाहते हो तो तुम जा सकते हो. इफ यू आर नॉट हैविंग द कंसंट्रेशन इन द क्लास, अगर तुम्हारी कंसंट्रेशन क्लास में है ही नहीं, तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं बाहर, क्लियर, क्लास से बाहर चला जाऊं, तो टीचर क्यों रोकेगा तुम्हें? टीचर आगे से क्या आंसर देगा? इफ यू लाइक यू कैन गो. अगर तुम चाहते हो तो तुम जा सकते हो. क्लियर? सो व्हाट वी आर गोइंग टू बी से एट दैट टाइम, इफ यू लाइक you can go. So here what conjunction I use here? I use if conjunction. So if is a conjunction, subordinate conjunction used here. Clear? If you like you can go. अब नेक्स्ट सेंटेंसेस, शीला एक अच्छी गायिका ही नहीं एक नृत्यकी भी है. तो उसके लिए देखिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे. शीला एक अच्छी गायिका ही नहीं, शीला नॉट ओनली अ गुड सिंगर
but also a good dancer. Clear, students? Sheila is not only a good singer but also a good dancer. क्लियर हुआ? शीला ना तो सिर्फ एक अच्छी गायिका है पर एक अच्छी नृत्यकी भी है. So here we are used the subordinate conjunction, that is not only but also. जब भी हम not only but also यूज करेंगे साथ साथ आएंगे, इकट्ठे आएंगे, हम इनको अलग अलग यूज नहीं करेंगे. Clear, students? Is this clear to all of you or not? Okay. Now, write it down this in your copy, this line. Hurry up. Sorry. अब मैं आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कुछ बताऊंगी और कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सो दैट इट मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू कि कहां पे हम कोऑर्डिनेट यूज करेंगे और कहां पे सबऑर्डिनेट यूज करेंगे. क्लियर? Now we are going to do that coordinate conjunction and subordinate conjunction. Clear? Coordinate conjunction में देखिए कौन कौन सी conjunctions आएंगी. And, but, for, or, else, yet, यद्यपि. ठीक है? Yet means is यद्यपि. And, but, for, or, else, yet, either, or. Next is neither nor. So these all conjunctions come in your coordinate one. Clear? These conjunctions join only the sentences of the equal rank. ये conjunctions वो वाले sentences को ही join करेंगी जो equal rank के होंगे. Clear? एक और किया था हमने therefore. नेक्स्ट आप लोग लिखिए subordinate conjunction. Subordinate conjunction कौन कौन सी होती हैं? क्लियर? दैट आई एम गोइंग टू टेल यू रिगार्डिंग दैट. subordinate conjunctions देखिए, फर्स्ट वन आता है हमारा आफ्टर. अभी हमने कौन से की थी? नॉट ओनली बट ऑल्सो, इफ, now, because, as, before, though, although, till, where. So there are lots of conjunctions, subordinate conjunctions. Clear? Though, although, till, where, then, that,
as, so is this clear to all of you? कौन कौन सी कंजंक्शन है subordinate और कौन कौन सी कंजंक्शन है coordinate? क्लियर? अब इधर देखिए, आफ्टर का मतलब होता है बाद. नॉट ओनली, ना तो सिर्फ वो एक अच्छी गायिका है, पर वो एक अच्छी नृत्यकी भी है. ना तो पर, नॉट ओनली बट ऑल्सो. इफ मीन्स, आई टोल्ड यू रिगार्डिंग दैट वन. ठीक है? इफ यू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस. अगर तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तो तुम सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकते हो. नाउ अभी, बिकॉज, क्योंकि, एज, चूंकि, बिफोर, बाद में, दो, यद्यपि, ऑल्दो इज ऑल्सो मीनिंग इज अगरचे, मीन्स यद्यपि. ठीक है? तो हम इसे इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं इन दोनों को. अब देखिए, टिल का मतलब होता है तक. क्लियर? वेयर का मतलब कहां. दैट मीन्स इज कि, और एज मीन्स चूंकि. एज हम कर चुके हैं. Write it down this in your copies, hurry up. These are some conjunctions of coordinate as well as subordinate. Be fast, students. Write it down in your copies. So I hope कि आपको सारी कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्लियर होगी होंगी. कोई डाउट तो नहीं है किसी में? नो? क्लियर है? ये सबऑर्डिनेट, ये थोड़ी सी क्वाइट टफ में आती है, बिकॉज ये वाली तो हम बना ही लेते हैं नॉर्मली, बट ये थोड़े से सेंटेंसेस होते हैं जो एक दूसरे पे अपने आप पे निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं. क्लियर? और मैंने आपको इधर एक वर्ड बताया था, टिल. टिल का मतलब होता है तक, और अनटिल होता है जब तक. क्लियर? सो हम टिल और अनटिल को ऐसे यूज करते हैं. टिल मीन्स तक और अनटिल मीन्स जब तक. ओके. सो रिवाइज दीज ऑल कंजंक्शंस. टिल देन आई एम राइटिंग आउट सम एक्सरसाइज फॉर यू पीपल. रिवाइज कीजिए आप, हरी आप. Exercise regarding conjunction. The first one is walk quickly dash. अब इसमें मैं आपको डैश दे रही हूं. क्लियर? आई एम गिविंग यू द fill in the blanks. You have to fill these blanks in your sentences.
Means which conjunctions is appropriate for this one. Walk quickly, else you will miss the train. Walk quickly dash, you will miss the train. Next sentence is dash he dash you are guilty. Next is dash Shyam dash Ram is dishonest. Next one, he is dash lazy dash dishonest. He is dash lazy dash dishonest. ऐसे ही dishonest. Clear? Next is I am dash tired dash I can't stand. I am dash tired dash I can't stand. Next sentence is that dash you sow dash shall you reap. ये idiom है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे. Dash he rich dash he is dishonest. Dash he is rich dash he is dishonest. Next sentence, this is the same book dash that. This is the same book dash that. Students, write it down in your copies, hurry up, and after that fill out these blanks. I dash my friends are going for picnic. Next is last one. He is dash lazy dash dull. Okay. Now I'm going to give you the blanks for that one. I'm writing down here. Means from these conjunctions you have to put it in the blanks. Neither or, not only, but also, as, if, that, neither nor, both, and, else,
and so okay students, now write it down, these exercise, do this exercise, hurry up. I'm giving you 5 minutes, do this exercise. I'm again repeating that one, don't write, look here firstly. Stop writing students, पहले इधर देखिए, walk quickly, dash you will miss the train. जल्दी चलिए, अन्यथा आप गाड़ी मिस कर देंगे, मीन्स छोड़ देंगे, छूट जाएगी. Dash he dash, you are guilty. Dash Sham dash Ram is dishonest. He is dash lazy dash dishonest. I am dash tired dash I can't stand. Dash you sow dash shall you reap. Dash he is rich dash he is dishonest. This is the same book dash that. I dash my friends are going for picnic. And last one is, he is dash lazy dash dull. Clear students? Now write it down into your copies and do this exercise. Do this exercise. I am giving you only 5 minutes, means half minute for one sentence. Do hurry up. These are the examples on the right-hand side of the board. I wrote there. While seeing that example, you can write this.
Done, students? The time is over. Done? Look at the first sentence, that is walk quickly dash you will miss the train. Means तेज चलिए अन्यथा आपकी गाड़ी छूट जाएगी. So डबल ब्लैंक तो है नहीं, इसलिए we won't be put either or. ना तो हम not only but also लगा सकते हैं. बचा as if that else and so. So क्या आएगा? Which is the proper? As आएगा. Walk quickly as you will miss the train. हाँ जी, वॉक क्विकली चूंकि तुम ट्रेन मिस कर दोगे. नहीं, मैंने क्या बोला था? मैंने तेज चलिए अन्यथा आपकी गाड़ी छूट जाएगी. सो वॉक क्विकली एल्स यू विल मिस द ट्रेन. क्लियर? वॉक क्विकली एल्स यू विल मिस द ट्रेन. नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट डैश ही डैश यू आर गिल्टी. या तो वे या आप दोषी हैं. क्लियर? ये भी हो सकता है ना तो ये ना तो आप दोषी हैं. क्लियर? सो इन दिस ये दोनों आ सकते हैं. यू कैन राइट दीज बोथ. क्लियर? इफ यू रोट, अगर आपने ये लिखा है कॉपी पे ईदर ही और यू आर गिल्टी, तो करेक्ट कीजिए. इट्स करेक्ट. अगर आपने ये भी लिखा है नीदर ही नॉर यू आर गिल्टी, ना तो ये ना तो आप दोषी हैं, तो एट दैट टाइम इट्स ऑल्सो करेक्ट सेंटेंस. क्लियर? देखिए कैसे करेक्ट है, बिकॉज इसमें काफी सारे ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो सेम मीनिंग ही निकल रहा होता है उनका. क्लियर? तो उस टाइम के ऊपर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वेदर वी पुट ईदर और वी कैन पुट नीदर और नॉट. ठीक है? तो एट दैट टाइम व्हाट यू कैन बी डू, यू कैन डू दैट, आप दोनों पुट अप करके देखिए और उसका मीनिंग निकालिए. इज दिस बी करेक्ट और नॉट? एट दैट टाइम यू कैन पुट एनी वन फ्रॉम दैट. क्लियर? अभी ना देखिए हम क्या पुट कर रहे हैं. ईदर ही और यू आर गिल्टी, या तो वे या आप दोषी हैं. अब मैं ये पुट करती हूं नीदर नॉर. नीदर ही नॉर यू आर गिल्टी. ना तो आप ना तो वे दोषी हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जिसने ईदर और लिखा है वो भी करेक्ट कीजिए, जिसने नीदर नॉर लिखा है वो भी करेक्ट कीजिए. ये फर्स्ट वाला कितने बच्चों का करेक्ट था सेंटेंस? How many of you are done the correct sentence? Good. So इस तरह ही हमें करना है. क्लियर? अब इधर आप इधर और भी लिख सकते हैं, नीदर नॉर भी लिख सकते हैं. So correct it out your sentence if this sentence is correct. Now come to the next sentence. Dash Sham dash Sham dash Ram is dishonest. Means ना तो श्याम ना तो राम बेईमान है. इसमें यह आ सकता है या तो श्याम या तो राम बेईमान है. डिसऑनेस्ट बेईमान नहीं है, कुछ ऐसे बन रहा है सेंटेंस. देखिए डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान नहीं, है ना. तो नीदर ऑफ का सेंटेंसेस किस लिए होते हैं? नेगेटिव में आते हैं ज्यादातर ये सेंटेंसेस. देखिए इट्स कम इन द नेगेटिव एंड it always come in the positive sentences. So either or is always come in the positive one and your neither nor is comes in the negative one. So नहीं को दर्शाने के लिए इसमें हम यूज करते हैं neither nor. अब देखिए either श्याम और राम is dishonest. कुछ बन रहा है सेंटेंस. या तो श्याम या तो राम is या तो श्याम या तो राम बेईमान नहीं है ना. हम ये बोल सकते हैं नीदर श्याम नॉर राम इज डिसऑनेस्ट. ना तो श्याम ना तो राम बेईमान है. ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में से कोई भी बेईमान नहीं है. दोनों ही क्या हैं? बोथ आर ऑनेस्ट पर्सन्स. क्लियर? बोथ आर ऑनेस्ट पर्सन्स. नेक्स्ट सेंटेंस इज he is dash lazy dash dishonest. इसका मतलब है
वे काहिल ही नहीं बेईमान भी है। मतलब वो थका थका ही नहीं रहता है पर बेईमान भी है। बताइए, मीन्स वह थका भी रहता है और बेईमान भी है। सो क्या आएगा? ही इज बोथ लेजी एंड डिसऑनेस्ट। क्लियर? सो इसमें क्या आएगा? दिस सेंटेंस, ही इज बोथ लेजी, वो तो थका हुआ काहिल भी है और बेईमान भी है। सो ही इज बोथ लेजी एंड डिसऑनेस्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? These are also sentences of your use, daily use. Okay? So try to use also in your speaking session as well. In your daily routine speaking. Next sentence is, I am dash tired, dash I can't stand. मैं इसकी हिंदी बना के आपको बता रही हूं, मैं इतना थका हुआ हूं कि खड़ा नहीं हो सकता। मैं इतना थका हुआ हूं कि खड़ा नहीं हो सकता। The question is, I'm dash tired, dash I can't stand. The answer of this is, I am so tired that I can't stand. I am so tired कि मैं खड़ा नहीं हो सकता। That I can't stand. कितने स्टूडेंट्स का करेक्ट है? बताइए, ये वाला सेंटेंस कितने स्टूडेंट्स का करेक्ट है और ये वाला सेंटेंस भी कितने स्टूडेंट्स का करेक्ट है? हाफ ऑफ द क्लास का। ओके, और नेक्स्ट, गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। दिस इज द ईडियम। आप ईडियम और फ्रेजेस में लिख सकते, कहावत है ना? जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो इसमें आएगा एज, दोनों में। एज यू सो as shall you reap. अब लोग हम बोलते हैं ना कि वो लोमड़ी की तरह चतुर है ना? तो इसके लिए ये सेंटेंस यूज होता है, she is as clever as fox. Clear? Is this sentence is clear to you? as कहां पे हम पुट करेंगे? उसी तरह हमने यहां पे as you sow, as shall you reap यूज किया। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, डैश ही इज रिच, डैश ही इज डिसऑनेस्ट। यद्यपि वे दौलतमंद है फिर भी बेईमान है। यद्यपि का मैंने आपको बताया था सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यद्यपि? दैट इज दो। ठीक है, तो यू शुड राइट इट डाउन हियर। ओ सॉरी, मैंने एग्जाम्पल में नहीं लिखा है। सो सॉरी स्टूडेंट्स, इट्स माय मिस्टेक। मैंने एग्जाम्पल में नहीं लिखा है। अब देखिए, एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया दो। ये आप लोगों का करेक्ट हो ही नहीं सकता, बिकॉज मैंने एग्जाम्पल में तो लिखा ही नहीं था। दो ही इज रिच येट ही इज डिसऑनेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, दिस इज द सेम बुक डैश दैट। ये उस जैसी ही पुस्तक है। ये उस जैसी ही पुस्तक है। दिस इज द सेम बुक एज दैट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज आई डैश माई फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर पिकनिक। मैं और मेरे फ्रेंड्स पिकनिक के लिए जा रहे हैं। I and मैं और मेरे फ्रेंड्स। क्लियर स्टूडेंट्स? करेक्ट कीजिए, हरी अप। जिस जिनके गलत हुए हैं, करेक्ट इट आउट योर सेंटेंसेस। हरी अप।
अब इधर देखिए, ही इज बोथ लेजी एंड डल भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें हम ये भी लगा सकते हैं, ही इज नॉट ओनली लेजी, ना तो वो सिर्फ कायर है बट डल भी है, बट ऑल्सो डल। क्लियर? सो हियर यू कैन पुट नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल। इधर भी इसका मतलब हम लोग पुट कर सकते हैं, ही इज नॉट ओनली लेजी बट ऑल्सो डिसऑनेस्ट। क्लियर? ना तो वो से थका हुआ काहिर मतलब, पर वो बेईमान भी है। क्लियर स्टूडेंट्स? Is this clear to all of you, the exercise regarding the conjunction what we did? Okay, that's really good one. क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा है सब बहुत अच्छे से? नोट डाउन कर लीजिए, हरी अप स्टूडेंट्स। डन हो गए नोट? ओके, नाउ योर that conjunction session has finished. अब तुम्हारा कंजंक्शन वाला सेशन खत्म हो चुका है। कोई डाउट है इसमें कंजंक्शन में? प्रीवियस लेसन में हमने किए थे इडियम्स, है ना? जोरू का गुलाम, क्रोकोडाइल टीयर्स, हैंडपेक्ड हस्बैंड, मैन ऑफ आयरन, शोइंग ऑफ कलर्स, ये किए थे सारे ना हमने। व्हाइट लाई, brand spanking new. Clear? So these are the idioms that we are always using in our speaking. We used to do in our, we are usually speaking in our English that thing. Clear? But earlier people जो पुराने जमाने के लोग थे, ठीक है, वो लोग क्या कहते होते थे? वो कहावतें बोलते थे, है ना? तो कहावतें क्या होती हैं? That is the proverbs. आज हम करेंगे कुछ प्रोवर्ब्स। क्लियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट प्रोवर्ब आएगा आपका बहुत ही नॉर्मल, आजकल भी हम लोग वो वाली कहावत को बोलते हैं, मींस अंत भला, अंत भले का भला। वो मूवी देखी है, सबने देखी होगी, 3 इडियट्स, है ना? उसमें एक वर्ड, 2 वर्ड्स को बहुत यूज करते थे, एंड दे आर डूइंग द वर्क वेरी वेल। क्या बोलते थे? all's well, है ना? तो all's well is what? अंत भला, अंत भले का भला। तो the proverb for that is all's well that ends well. अंत भले का भला means all's well that ends well. Clear? Next one is बद अच्छा बदनाम बुरा, means you're going to be say at that time a bad man is better than a bad name. For example, इधर देखिए स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, वेल्थ और कैरेक्टर। क्लियर?
अगर हमारी वेल्थ चली जाती है, मतलब अगर हमारे से पैसा चला जाता है, तो वी लॉस्ट नथिंग, हमारे से कुछ नहीं जाता है, ठीक है, हम कुछ नहीं खोते हैं. अगर हमारी सेहत, हमारी हेल्थ हमारे से चली जाती है, तो वी लॉस्ट समथिंग फ्रॉम आवर हेल्थ. बट इफ योर कैरेक्टर इज लॉस्ट, एट दैट टाइम एवरीथिंग इज लॉस्ट फ्रॉम योर लाइफ. क्लियर? कैरेक्टर मीन्स अगर आपका कैरेक्टर ही आपसे चला गया, क्लियर, अगर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो दी, तो सब कुछ ही चला जाता है जिंदगी से. पैसा तो हम फिर भी कमा लेंगे, बट नॉट विद दैट सेल्फ रिस्पेक्ट यू आर अर्निंग दैट मनी. क्लियर? सो एट दैट टाइम वी आर यूजिंग कि अ बैड मैन इज बेटर देन अ बैड नेम. मतलब बुरा नाम होने से अच्छा है कि तुम बुरे आदमी बन जाओ. क्लियर? सो हियर द कहावत, ये कहावत उन्होंने बोली है, द बैड मैन इज बेटर देन अ बैड नेम. सो ये हमारे करेक्टर के ऊपर सेंटेंस बोला जाता है, कहावत बोली जाती है ये वाली. दिस इज द वर्ब इज ऑलवेज स्पीकिंग ऑन आवर करेक्टर, रिलेटेड टू योर करेक्टर. क्लियर? मीन्स बद अच्छा और बदनाम बुरा. अब एक और कहावत आपने सुनी होगी, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है. क्लियर? सो व्हाट्स द इंग्लिश प्रोवर्ब इन देयर? इंग्लिश प्रोवर्ब क्या है? अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर. अ बर्न्ड child dreads the fire. Means दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है. Is this clear, students? Okay. एक और कहावत है, थोथा चना बाजे घना. मीन्स एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच. वैसे इसका मतलब देखा जाए, जो खाली बर्तन होता है वो बहुत ज्यादा आवाज करता है. क्लियर? तो उस टाइम के ऊपर अगर आपको ये इडियम बोलना है, तो यू कैन बी यूज दिस थिंग एज एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच. मतलब फॉर एग्जांपल ऑफिसेज में, आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, क्लास में लेट टेक एग्जांपल ऑफ द क्लास एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू द एग्जांपल फॉर द ऑफिस. देखिए, क्लास में आपके बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि कॉपीज तो खोल के देखनी नहीं. क्लियर? और इतना शाउट करना, अगर टीचर किसी इंटेलिजेंट पर्सन से क्वेश्चन पूछ रही है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट से, ठीक है, उस टाइम बोलना है कि नहीं ये तो गलत बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है. सो एट दैट टाइम दे आर व्हाट? दे आर एन एम्प्टी वेसल. दोज हु आर साउंड मच, वो खाली बर्तन होते हैं जो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं. मीन्स खुद तो उन्हें कुछ नॉलेज है नहीं किसी चीज के बारे में. क्लियर? और जो बता रहा है उसके बारे में भी दे आर इंटरफियरिंग इन दैट. So at that time you should use this proverb that empty vessel sounds much. Is this clear to all of you? With an example? Good. Next one is एक और फ्रेज है, प्रोवर्ब है आपका, अंधों में काना राजा. The proverb in English is that a figure among ciphers. A figure among ciphers. Okay, students? Is this clear? हम इन 5 को ही रिवाइज करते हैं. चलिए एक और कर लीजिए. 6 I wrote that. चलो एक और कर लेते हैं. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. बहुत सिंपल है. बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स. क्लियर?
अभी देखिए जो प्रोवर्ब्स हैं इनके मीनिंग कुछ कुछ इनके सेंटेंस से ही क्लियर हो जाते हैं, बट इडियम्स के मीनिंग उनके सेंटेंसेस से क्लियर नहीं होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नाउ अगेन रिपीटिंग दिस वन, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. क्या बोलते हैं इसे हम? अंत भला तो सब भला. राइट. नेक्स्ट इज अ बैड मैन इज बेटर देन अ बैड नेम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? बद अच्छा बदनाम बुरा. आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ करेक्टर इन दिस, है ना? गुड. आई गेव यू एग्जाम्पल ऑफ 3 Idiots मूवी इन दिस. सो बी रिमेंबर दिस थिंग. 3 Idiots मूवी से क्या है? All's well that ends well. Next example I gave you from the character. अब next is a burnt child dreads the fire. बताइए क्या होगा? दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है. मींस एक बार अगर गलती आपसे हो जाती है उसको आप दोबारा नहीं दोहराते हैं. ठीक है? अगर वो चीज आपने दोबारा करना है तो बहुत ही आराम से डिसिप्लिन के साथ, by clearing all the techniques with that time you can be use it out. A burnt child dreads the fire. Clear? For example, कंपनी में एक एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया जाता है. क्लियर? बेंच पे डाल दिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर मिस्टेक्स एंड ऑल. बट उसे फिर से दोबारा से उसे प्रोसेस दे दिया जाता है. क्लियर? दोबारा से फिर वो ज्वाइन कर लेता है कंपनी में. बट अब की बार जब वो ज्वाइन करता है, कुछ भी उसे काम मिलता है, तो व्हाट ही इज गोइंग टू बी डू एट दैट टाइम? He is doing a burnt child dreads the fire. मतलब अब वो जो भी काम करेगा बहुत ही आराम से और तरीके के साथ करेगा. Clear? Without any mistake. Next one is an empty vessel sounds much. In this, I gave you example of what? I gave you the example of the student, those who are not having the knowledge and they are shouting while the other intelligent student is speaking or giving the answer to the teacher. Clear? At that time you should learn that child is an empty vessel who sounds much. Clear? A figure among ciphers means अंधों में काना राजा. And last one is very much can say you can be used this very frequently. Clear? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, है ना? बहुत बार यूज कर सकते हैं हम इसे. जो गरजते हैं यार वो बरसते नहीं. जैसे आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कि ये बोल दिया, ठीक है, आपको धमकी दे दी, थ्रेट कर दिया, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा. दैट टाइम यू शुड से टू देम, barking dog seldom bites. Firstly do, then we'll realize this that you are that sort of person. Okay? So always the barking dogs have their seldom bites. Is this clear to all of you students? Write it down, it into your copies. अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं दोबारा से आके आपसे पूछूंगी फिर से ये 6 proverbs which we did today. Okay? Okay students, then bye bye. We'll meet you with the next lecture. I'll meet you over there. Bye.